تشریف رکھیے. مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بالآخر خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم آج خدا کے کلام کے بھیدوں کو جانیں. میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، آج ایک خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل، ہمیں سب سے پہلے جب بھی ہم خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہے جو خدا کو اگر ہم کریں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا. وہ کام یہ ہے کہ ہمیں ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. ہمیں توبہ کرنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی تعلیم دیتے تھے کہ توبہ کرو، رجوع لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آسمان کی بادشاہی میرے عزیزو نزدیک ہے. ہم جب بھی خداوند کے سامنے جائیں، ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اور ہمیں رجوع لانا ہے. ہمیں خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، اور میں تیرے پاس آتی ہوں. تو میرے عزیزو، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، تو وہ ہمیں بحال کرے گا، وہ اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھائے گا. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. میرے عزیزو، وہ زندہ خدا ہے. ہم جب بھی زندہ کو کسی کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے. لوگوں کے معبود جو ہے وہ قبروں میں بند ہیں، مگر ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. آج خدا نے بہت خوبصورت ہمیں ٹاپک دیا ہے، اور وہ ٹاپک ہے قائم رہنا. بہت زبردست ٹاپک ہے، اور یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے یوحنا اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت. مہربانی سے آپ جب بھی چرچ میں آتے ہیں تو آپ خداوند کے کلام کو اپنے ساتھ رکھیں، ساتھ لے کر آئیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، بہن کو بتا سکتا ہے. ہم ان کے لیے کلام مقدس پرووائڈ کریں گے. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. اور جو نہیں پڑھ سکتے، آپ دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسے وسائل مہیا کرے جن سے ہم آپ تک آڈیو خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچا سکیں. تو آئیے ہم مرکزی حوالہ جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت. کلام حق میں یوں لکھا ہوا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو کیا ہوگا جی؟ جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللویا، ہاللویا. دیکھیں، آج جو ٹاپک خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہے قائم رہنا. قائم رہنے کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ڈٹے رہنا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ٹھہرے رہنا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ موجود رہنا. اگر ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہم دنیاوی سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں موجود رہیں. اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ مستقل رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، ہر لمحہ چلتے رہنا. اور اس کا ایک خوبصورت مطلب یہ بھی ہے کہ مضبوط رہنا. ہاللویا. اور دیکھیں، اور ایک اور مطلب یہ ہے کہ جڑ پکڑنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھتے جانا.
हालेलुया। हालेलुया। हम आज गौर करेंगे, आज जानेंगे कि खुदा का कलाम हमेशा ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है। खुदा का कलाम जो है, खुदा के वादे जो हैं वो किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। खुदा का कलाम जो है वो ईमानदारों की हमेशा हौसला अफजाई करता है और एक और खास काम करता है, और वो खास काम ये है कि वो नसीहत करता है। वो हर लम्हा हर पल उसका पाक रूह हमें गाइड करता है और वो हमें बताता है कि ये रास्ता मेरे बेटे तेरे लिए सही है या नहीं है, मेरे लिए ये रास्ता ठीक है या नहीं है। खुदा का पाक रूह, खुदा का कलाम हमें बताता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में हर रोज मौजज़ात करे, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बसने दीजिएगा। वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद में कायम रहते हुए हमें जिंदगी को गुजारना है। इसमें रहते हुए कायम, खुदा के कलाम में हमें कायम रहते हुए जिंदगी को गुजारना है। और एक खास बात आज जो खुदा का कलाम हमें देता है वो ये है कि कलाम फजल की हालत में मुसलसल कायम रहने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का फजल जो है वो हर एक खास और आम पर हो चुका है, मगर मेरे अजीजों जो खुदा के कलाम से, खुदा से दिल लगाते हैं, उसके साथ रफाकत रखते हैं, उसके साथ अपने तल्लक को बढ़ाते हैं, तो मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलाम जो है वो फजल की हालत में मुसलसल कायम रहने में हमारी हिदायतों रहनुमाई करता है और मुस्तकिल लगे रहने की तलकीन करता है। हमें मुस्तकिल इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है। मुस्तकिल जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम दूसरे काम करते हैं, उसी तरह खुदा के कलाम को हमें अपनी जिंदगियों में अप्लाई करना है और हर रोज हमें इस कलाम की स्टडी करनी है और हर रोज हमें कलाम में पढ़ते जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम एक बात को सीखेंगे कि हमसे गलतियां खताएं सरजद होती हैं, मगर मेरे अजीजों जब हम क्या करते हैं, एक बर्तन है, वो कौन सा बर्तन है जिसको हमें साफ करना है? बर्तन कौन सा है? वो हमारा जो दिल है, ये एक बर्तन है। अगर ये गंदा हो जाए, अगर हम इसमें कोई चीज डालें, कोई भी बर्तन हो उसमें हम कोई चीज डालें, तो हम उसको खाएंगे? गंदे बर्तन में खाएंगे? नहीं खाएंगे। जब तक उस बर्तन को साफ नहीं किया जाएगा तब तक हम वो चीज उसमें डालकर नहीं खाएंगे। मेरे अज़ीज़ों खुदा जो है वो चाहता है कि हम इस बर्तन को साफ करें, पाक करें। जब हम पाक और साफ करेंगे तो फिर खुदा कसरत से हमारी जिंदगियों में काम करेगा, वो हमारे दिल में रहेगा। और जब वो हमारे दिल में रहेगा तो मेरे अज़ीज़ों दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, कोई हमें मेरे अज़ीज़ों शिकस्त नहीं दे सकता। हम यीशु नाम से फतह को पाते हैं। और खास बात हमें क्या करनी है कायम रहने के लिए? हमें मुसलसल दुआ करनी है, मुसलसल लगातार दुआ करनी है। हर लम्हा हर पल हमें दुआ में गुजारना है। और हम आज गौर करेंगे कि रसूल जो है वो दुआ करते थे और फिर क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। रोटी तोड़ने से मुराद ये है कि वो मसीह की रफाकत में एक थे, उसके बदन को लेते थे और वो रोटी तोड़ते थे और फिर वो क्या करते थे? एक दूसरे की मदद करते थे। आज कितने लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी है
کہ میں نے جب سے مسیح کو قبول کیا ہے اور خدا نے میری زندگی کو تبدیل کیا ہے تو خدا نے مجھے یہ اسپرٹ دیا ہے کہ کسی بھی سورس سے کہیں سے بھی اگر میرے پاس نہیں بھی ہے تو کسی سورس سے کسی نہ کسی کی مدد کی جائے. ہاللیلویا. اور ہمیں بھی اس طرح کرنا ہے. اور ابھی خدا نے مجھے ایک نکاح نامہ دیا ہے اور اس میں سارے جو پیپر ہیں وہ بھی خدا نے مجھے دیے ہیں. اور دیکھیں کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں. مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی میری ضرورت ہو میں اور میری سسٹر ہم حاضر ہیں. ہم ان کے لیے کم پیسوں میں جو گورنمنٹ کی فیس ہے صرف وہ لے کر ہم نکاح کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے. ایک شخص تھا جو ہماری مخالفت کرتا تھا اور جو ہمیں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. مگر کل اس کا فون آیا, میری سسٹر کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو فون آیا تو اس نے مجھے کہا کہ پادری صاحب ایک جگہ پر آپ نے مجھے ریکمینڈ کرنا ہے. ایک جگہ پر میرا پروجیکٹ چلنے والا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر ندیم سے بولیں ہم آپ کو نہیں جانتے تو آپ نے مجھے وہاں پر ریکمینڈ کرنا ہے. تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کرتا ہے یا اس نے میرے ساتھ کیا کیا. میرے عزیزو آج یاد رکھیے کہ اجر جو ہے وہ خدا دیتا ہے. جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں اس کی باتیں ہم میں قائم رہتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا. ہاللیلویا. ہم کسی انسان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس زندہ خدا کی طرف دیکھیں جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. آج جاتے جاتے چند باتیں لے لیجئے گا اور یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. ہم 10 اقدام اگر اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خداوند میں قائم رہتے ہیں. ہاللیلویا. 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 سب سے پہلے ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے. ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے. سب سے پہلے ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے. حوالہ اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ کر لے. کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایمان میں قائم رہنے کے بارے میں خدا ہمیں بتاتا ہے. اور پھر دوسری بات, سب سے پہلے جب ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے اور خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا اور جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے تو ہم ایمان میں گروتھ کرتے جائیں گے. ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے خون کے وسیلہ سے رہائی پاتے ہیں. ہم چھٹکارا پاتے ہیں. ہم نجات پاتے ہیں. میرے عزیزو کوئی اور ہمیں نجات نہیں دے سکتا. صرف نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. ہاللیلویا. 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 تو میرے عزیزو دوسری بات جو ہے وہ ہمیں خدا کے فضل میں قائم رہنا ہے. کس کے فضل میں قائم رہنا ہے؟ خدا کے فضل میں ہمیں قائم رہنا ہے. اعمال اور اس کا 3 باب اور اس کی 43ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر سب سے زبردست بات کیا ہے, ہمیں کس میں قائم رہنا ہے؟ مسیح کی محبت میں ہمیں قائم رہنا ہے. سب کہیں آمین. آمین. سب کہیں آمین. آمین. یوحنا اس کا 15واں باب اور اس کی ہم 9ویں سے 16ویں آیت تک پڑھیں گے. بہن نورین سے گزارش ہے کہ وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں. یوحنا 15واں باب اور اس کی 9ویں سے 16ویں آیت. ان کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں گے تو کلام میں یوں لکھا ہے, جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی, جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی, ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی. ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی.
तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। आमीन। आमीन। देखें, खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत में से हमें देता है और वो कहता है कि खुदा की मोहब्बत मुझ तक आई है, मैंने आपको दे दी है, आपने उसको दूसरों तक बांटना है और उसमें कायम रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम इसका दूसरा एक पॉइंट है, अगर वो सीखें तो वहां पर लिखा हुआ है मत्ती 22वां बाब और उसकी 35 से 42 आयत आप स्टडी कीजिएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर। और फिर लिखा हुआ है कि अपनी मानद किससे मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। ये पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी जो है हर वो जरूरतमंद जिसको हमारी जरूरत है, हमारी दुआओं की जरूरत है, हमारे रुपए पैसे की जरूरत है, हमारे कपड़ों की जरूरत है, हमारे खाने की जरूरत है, वो हमारा पड़ोसी है। मेरे अजीजों, चौथी बात पर हम गौर करेंगे कि खुदा की भलाई में हमें कायम रहना। अभी हमने देखा है इस आयत में, नोट कर लीजिएगा, रोमियो उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत, हमें खुदा की भलाई में कायम रहना है। और खुदावंद देखें कि वो भला है और भलाई ही करता है और भला ही करता जाता है, मगर वो किसी से बदला नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि अभी मैंने कुछ दे, मगर हम भलाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये मेरे लिए क्या करेगा, अगर हम इसको देंगे तो ये मेरे लिए क्या करेगा। हमें खुदावंद के फजल से हमें भलाई में आगे बढ़ना है। और फिर 5वीं जो बात है, हमें दुआ करने में कायम रहना है, हर वक्त दुआ करनी है। और इस बात को आप मद्देनजर रखें कि आप सोचें कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया है, खुदा ने वो, मगर मेरे अजीजों, अगर हम दुआ में उसके साथ जुड़े रहेंगे, अपने दिल की बातें उससे शेयर करेंगे, जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। और वो कहता है कि जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और छठी बात वो ये है कि हमें ईमान सखाफत में कायम रहना है और ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहना है। डॉक्टर के पास जाए ना, डॉक्टर को जाइए ना ते डॉक्टर दवाई देता है ते नाल कहता है कि ए चीज़ां की करना है, परहेज करना। तो खुदावंद भी अपने कलाम में हमें बताता है कि हमें ईमान, मोहब्बत में और पाकीज़गी में कायम रहना है और उसके साथ हमें चलना है। और फिर हमें जो 7वीं बात है, कलाम में कायम रहना है। खुदा के कलाम में हमें कायम रहना है कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है और हमारी खुद की विशेष क्या हैं, हमारी खुद की ख्वाहिशें क्या हैं। हमें इस बात को जांचना है, आज देखना है कि खुदा हमसे क्या चाहता है और हम किस डगर पर चल रहे हैं। और 8वीं जो बात है वो ये है कि बाप और बेटे में कायम रहना है। जिस तरह बेटा बाप में कायम है और वो उसकी बातें हम में कायम है, इसी तरह हमें बाप और बेटे दोनों में कायम रहना है। वो कहता है कि तुम मेरे बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर एक जो नवी बात है, वो जो नवा पॉइंट है वो है रसूलों की तालीम में कायम रहना है। ये रसूल
कैसे करते थे, कि रसूल जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ रहते थे, वो किस तरह तालीम देते थे, और तालीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में हमें मशगूल रहना है। मशगूल रहने का मतलब है, समझ लो कि मस्त रहना, यानी कि ਉਹਦੇ ਚ ਖੁੱਬੇ रहना है, मगन रहना है उसमें। तो जो 10वां पॉइंट है, अंगूर में पवस्त रहना है हमें। अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। वो कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या करती है? फल लाती है। वो गिरती नहीं है, वो मुरझाती नहीं है, वो खूबसूरत रहती है, वो हरी भरी रहती है। मेरे अजीजों, आज आखिरी वर्ष को हम देखेंगे, पहला तसनीकियों और उसका 3 बाब और 8वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम रहो तो हम जिंदा हैं। क्या है जी मेरे सामने, मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम रहो तो हम जिंदा हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, हम आज गौर करेंगे कि हम जिंदा है भी या नहीं है। हम रूहानी तौर पर मर तो नहीं गए, हम खानदानी तौर पर मर तो नहीं गए। हम आज देखेंगे कि हम जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर क्या जिंदा हैं। हम समाजी तौर पर जिंदा हैं, हम अपने माशरे में देखेंगे और हम देखेंगे कि हम माली तौर पर जिंदा हैं, जेब से कुछ है या नहीं है। आज हम देखेंगे तो खुदा का कलाम हमें बताता है, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम रहो, किस में कायम रहो? वो कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और हमें आज गौर करना है कि क्या हम कलीसियाई तौर पर जिंदा हैं, क्या हम मुल्की तौर पर जिंदा हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जो है वो चाहता है, वो हमें दौलत भी देना चाहता है, वो हमें शोहरत भी देना चाहता है, वो हमें दानिशमंद भी बनाना चाहता है, वो हमें इल्म फहम देना चाहता है, और सबसे बढ़कर कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम हक में लिखा हुआ है कि अगर जिस्मानी तौर पर मर भी जाते हो तो तुम क्या करते हो? जिंदा रहते हो। अगर हमारा बदन ये मर भी जाता है तो जो मसीह में कायम रहता है वो हमेशा जिंदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम गौर करें, आज हम अपनी जिंदगियों में देखें कि क्या हम जिंदा जिंदगी को गुजार रहे हैं या मुर्दा तौर पर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हम खुदावंद में कायम हैं या नहीं हैं, आज गौर करने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हा इस कलाम पर गौर करेंगे। आज देखेंगे कि क्या मैं जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, माली तौर पर और खास तौर पर समाजी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर और मुल्की तौर पर जिंदा हूँ या नहीं हूँ। मैं खुदावंद में कायम हूँ या नहीं हूँ। आइए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदावंद में कायम रहेंगे तो हमारी जिंदगी से सारे अंधेरे, सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी और हम बहाल होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। किस किसने बरकत पाई है कलाम के वसीले से? जोरदार क्लैपिंग।